Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکل پڑتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. کیا تم امید رکھتے ہو، توقع کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، تمہیں یقین دلائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے اللہ کا کلام سنا پھر اس کے اندر تبدیلی کر دی اس کو سمجھنے کے بعد، اور حالانکہ وہ جانتے بھی تھے اس کلام کو، اور جب وہ ملتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جب ان میں سے بعض بات کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر علم کھولا ہے تو کیا تم ان کو ان کے سامنے بیان کر کے یہ اس بات کے اوپر ان کو باور کراتے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں تمہارے ساتھ اس معاملے کے اندر دلیل پکڑیں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ بے شک اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ سامعین ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تمہیں کیا یہ بات یاد نہیں ہے کہ جس طرح کہ دیکھو جس وقت تمہارا قاتل مر گیا تھا، تمہارا مقتول مر گیا تھا اور تمہیں قاتل کی تلاش تھی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قاتل کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا. تم اس کے بعد بھی کیا ہے نہیں دیکھ رہے، ہمارے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اور کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں فرعون سے کس نے نجات تھی؟ اور فرعون جب تمہارے پیچھے لگا تو دریائے نیل کے اندر تمہیں پار کس نے کروایا؟ اور دریائے نیل کے بعد جب مقام طے کے اندر تم جب گئے تو مقام طے کے اندر من اور سلوہ کا نزول تمہارے اوپر کس نے کیا؟ اور من اور سلوہ سے جب تم کھا کھا کر تھک گئے، اکتا گئے، تو پھر تمہیں طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کی انعامات و اکرامات تمہارے اوپر اس کا جو نزول ہوا یہ کس نے کیا؟ اگر اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لے کر آئے، تمہارا دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا، اور تم دیکھ بھی رہے تھے کہ ہم نے مردوں کو کس طرح زندہ کیا، پھر بھی کیا تم ایمان نہیں لے کر آئے، حالانکہ تمہارے دل تو کیا پتھروں سے بھی کیا ہے بدتر ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی کیا بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قساوت قلبی کو، دل کی سختی کو پتھروں کے ساتھ کیا مثال دی، بلکہ ان کے دل کی سختی کو پتھروں سے بھی کیا بدتر ارشاد فرمایا کہ پتھر اس کے اندر تو کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہوتی تاثیر ہوتی ہے، لیکن تمہارے دل کیا وہ بالکل بھی ہماری طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کو کیا قبول نہیں کر رہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھیے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی فساد آ جائے یا خرابی آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا وہ قلب ہے، وہ دل ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی جو صلاحیت تھی اس کے اندر کیا ان کی جو حیثیت تھی دلوں کی وہ تمہارے اندر کیا ہو چکی؟ ختم ہو چکی. اس لیے تم پتھروں سے بھی کیا ہے گئے گزرے ہوئے. یہاں پر میں حدیث پاک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے قساوت قلبی کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ شکار ہوتا ہے، دل کیا ہو جاتا ہے؟ بندے کا سخت ہو جاتا ہے. ہم میں سے کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کا دل حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں کرتا، حق بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے، باطل کو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. اب دل کی جو سختی ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तुक्सिरुल कलाम, ला तुक्सिरुल कलाम बिगैर ज़िक्रिल्लाह फइन्न कसरतल कलाम बिगैर ज़िक्रिल्लाह कसवतुल क़ल्ब व इन अबदन नास मिनल्लाह अल क़ल्बुल कासी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अल्लाह के जिक्र के अलावा बहुत ज्यादा कलाम न किया करो, यानी कि जब भी कलाम करो तो अल्लाह का जिक्र करते रहो। फरमाया कि क्योंकि अल्लाह के जिक्र के अलावा बहुत ही ज्यादा कलाम करना यह दिल की सख्ती का सबब बनता है, और जो दिल का सख्त मालिक होगा, यानी कि दिल की सख्ती का मालिक होगा, उसका दिल क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो वो अल्लाह से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। दूसरे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरबातुम मिनश शिका जुमूदुल ऐन व कसाउल कल्ब व तूलुल अमल वल हिर्स वल दुनिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि चार चीजें ऐसी हैं जो दिल की सख्ती को पैदा करती हैं, कसावत कल्बी को पैदा करती हैं। फरमाया पहली बात क्या है कि बंदा रोए नहीं, तन्हाई के अंदर ना रोए, अल्लाह को याद करके उसकी आंखों से आंसू ना बहे, यानी कि उसकी आंखों के अंदर जो खुश्की है वो तारी हो जाए। अल्लाह की याद करके, अल्लाह को याद करके, अल्लाह की खशियत के अंदर, अल्लाह की रजा की खातिर उसकी आंखों से आंसू ना बहें। दूसरे नंबर पर फरमाया कसाउल कल्ब, दिल का जाए बंदे का सख्त हो जाए। और तीसरे नंबर पर फरमाया तूलुल अमल, लंबी लंबी बंदा क्या करे, उम्मीद लगाना शुरू कर दे। और चौथे नंबर पर फरमाया वल हिर्स वाला दुनिया, दुनियावी मालो मनाल के अंदर बंदा क्या करे, लालच करे और उम्मीद लगा के रखे। तो फरमाया कि ये बंदे की कसावत कल्बी की क्या है, निशानियां। फरमाया कि ए बनी इसराइल, तुम्हारे दिल क्या हो चुके, इतने ज्यादा सख्त हो चुके हैं कि तुम अपने सामने इन मौजूदात को, इन निशानियों को, इन आयात को देखकर जो दलाहिल काहिरा हैं अरब ताला की वहदानियत पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के ऊपर ये दलाइल वाज़ेह हैं, लेकिन फिर भी तुम क्या है, उनकी तरफ ईमान लेकर आने वाले नहीं हो, उनकी तरफ दिल को माइल नहीं कर रहे हो। तुम्हारे दिल क्या हो चुके, इतने ज्यादा सख्त हो चुके हैं, बल्कि पत्थरों से भी क्या ज्यादा सख्त हो चुके हैं। ये क्यों इरशाद फरमाया कि पत्थरों से भी क्या उनके दिल ज्यादा सख्त हो चुके हैं? इसकी वजह क्या है? वजह क्या है वो उलमा फरमाते हैं, और रब तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि पत्थरों के अंदर कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जो हम देखते हैं कि अल्लाह के खौफ की वजह से ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिन पत्थरों के अंदर अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत की वजह से नहरें जारी हो जाती हैं। तो अब इन पत्थरों के अंदर रब तआला की खशियत इतनी, रब तआला का खौफ इतना कि रब तआला ने इनके अंदर ये तासीर पैदा कर दी है कि इनके अंदर क्या है, नहरें जारी हो चुकी हैं रब तआला के खौफ की वजह से। लेकिन वो बनी इसराइल जो है इंसान, इंसानी शक्ल के अंदर, लेकिन पत्थरों से भी क्या है, बदतर है कि उनके दिल के अंदर रब तआला का खौफ जरा भर भी नहीं आ रहा, उनके दिलों के अंदर रब तआला की खशियत जरा सी भी नहीं आ रही। अब यहां पर उलमा और मुफस्सिरीन ने यह बात नकल की है कि जो रब तआला ने इरशाद फरमाया व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनसे क्या नहरें जारी हो जाती, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनसे पानी जारी हो जाता है, और कुछ पत्थर रब तआला के खौफ की वजह से क्या गिर पड़ते हैं। इसके अंदर उलमा और मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाते हैं कि आया क्या पत्थर भी तासीर को कबूल करते हैं कि नहीं करते? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि रब तआला अगर उनके अंदर कुव्वत तासीर पैदा कर दे तो वो जरूर भी जरूर किसी चीज को क्या करते हैं, कबूल करते हैं। इसी वजह से सुतून हनाना के मुतालिक ये रिवायत हमारी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जिस वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर हन्नाना के सुतून के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, अब जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर के लिए मिंबर बना दिया, अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर बैठ गए, वहां जब जाकर आपने खुतबा दिया तो ये हन्नाना का सुतून रोने लग गया, ऐसे रोने लग गया जिस तरह के मक्खियों की बुनबुनाहट की आवाज होती है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मिंबर पर खुतबा छोड़कर इस हन्नाना के सुतून के साथ आकर क्या गले लग गए। अब ये हन्नाना का सुतून जो क्या पत्थर का है, तो इसके अंदर रोने की आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि रब तआला ने इसके अंदर क्या कर दी थी, तासीर पैदा कर दी थी। ऐसी एक और रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन हजरन काना युसल्लिमु अलैहि फिल जाहिलियत इन्नी लआरिफुहुल आन। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नबूवत के ऐलान से पहले एक पत्थर मुझे सलाम भेजा करता था, मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद पहाड़ के मुतालिक इरशाद फरमाया उहदुन जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि ये उहद पहाड़ ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब वो हुजूर से मोहब्बत कर रहा है और हुजूर इनसे मोहब्बत कर रहा है, तो मोहब्बत तभी हो सकती है कि जब किसी के पास क्या हो, दिल हो।
तो पत्थर के अंदर किस तरह हो सकती है मोहब्बत, उसके पास तो दिल ही नहीं। तो फरमाया उलमा ने इसका जवाब दिया कि रब ताला ने उसके अंदर ये कुव्वत पैदा कर दी थी कि वो रब ताला की कुव्वत के पैदा करने की वजह से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब को महसूस भी कर सकता था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को समा भी सकता था। इसलिए दूसरी रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद में काल अली सबीर अहबित फइन्नी अखाफु अन यक्तुलूका अला ज़हरी फयुअज़्ज़िमुनी अल्लाह फनादा हिरा इलैया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल सबीर पर तशरीफ ले गए। वहां जबल सबीर वो बोलकर हुजूर को मुखातब करके कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझसे नीचे उतर जाएं कि काफिरों का यह इरादा है कि वो आपको क्या कर दें, कत्ल कर दें, और ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मेरे ऊपर तशरीफ फरमा हो और वो आपको क्या कर दे, कत्ल कर दे, और मेरे ऊपर होने के कत्ल होने की वजह से कल क़यामत वाले दिन मुझे रब ताला क्या कर दे, अजाब दे दे। तो वहां पर गारे हिरा ने हुजूर को मुखातब करके इरशाद अर्ज की या रसूल सल्लल्लाहु मेरी तरफ आ जाए, मैं आपको क्या कर देता हूं, अपने अंदर क्या करता हूं, समा लेता हूं और अपने अंदर क्या कर देता हूं, छुपा लेता हूं। अब यहां पर देखें कि गारे हिरा जिसके अंदर हिस्स भी कोई नहीं, समझने की ताकत और कुव्वत भी कोई नहीं, और जबल सबीर यह भी क्या पत्थरों का पहाड़, इसके अंदर भी क्या कोई कुव्वत कोई नहीं, समझने वाली कुव्वत फाहम है ही कोई नहीं, कुव्वत इदराक है ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या खिताब कर रहे हैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो इसकी वजह क्या, उलमा यही फरमाते हैं कि इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत फाहम को पैदा फरमा दिया था, कुव्वत इदराक को पैदा कर दिया था, इसी वजह से ये हुजूर के साथ क्या करते हैं, खिताब करते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मबास से पहले, बेसत से पहले, नबूवत के ऐलान से पहले मैं जिस गली कूच से गुजरता तो उसकी तरफ जो भी पत्थर होते, जो भी शजर होता, जो दरख्त होता, जो पत्थर होता, तो वो मेरे ऊपर सलाम भेज रहा होता और ये कह रहा होता अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आप पर सलामती हो। अब उनके अंदर कुव्वत फाहम नहीं, कुव्वत इदराक नहीं, फिर भी वो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या है, सलाम भेज रहे हैं और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रहमतों का नजराना भेज रहे हैं। अब यहां पर क्या पत्थरों की तासीर के मुतालिक तो बात होगी, लेकिन बहुत ही जरूरी मसला ये है कि आजकल लोग क्या अंगूठियां पहनते हैं, उनके अंदर वो क्या करते हैं, पत्थर पहनते हैं, कोई अकीक, कोई जमुर्द, कोई याकूत, कोई फिरोजा, कोई नीलम वगैरह पहनता है। इसके अंदर पहला मसला ये याद रखिए कि 4.5 माशे से चांदी की अंगूठी हो, 4.5 माशे से कम हो चांदी की अंगूठी हो तो वो मर्द के लिए पहनना जायज है, मुबाह है। और अगर 4.5 माशे से ज्यादा हो या 2 अंगूठियां या एक की अंगूठी के अंदर एक नगीने से जायद लगे हुए हो, जिस तरह के तुर्किश स्टाइल के अंदर जो अंगूठी होती हैं कि उसके अंदर क्या है, काफी किस्म के क्या है नगीने लगे होते हैं। ये मेरे हाथ के अंदर ये उंगली है, अंगूठी है, इसके अंदर काफी किस्म की क्या है, ये नगीने लगे हुए हैं। अब ये भी नाजायज है, ये पहनना जायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि मर्द के लिए सोना जायज कोई नहीं, सोना हलाल कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चांदी की अंगूठी जो 4.5 माशे से कम हो तो वो क्या है, जाए। दूसरा, हमारे यहां ये बहुत बड़ी जो है ना गलत बात मशहूर होती है कि वो कहते हैं कि अकीक पहनने की वजह से या नीलम पहनने की वजह से या ज़ुमरुद पहनने की वजह से या फिरोजा पहनने की वजह से हमारे घर के हालात क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। पहले सबसे बड़ा तो यह याद रखिए कि घर के हालात तब्दील करना या हालात को वैसे तब्दील करना ये सिर्फ और सिर्फ रब ताला का काम है और कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। हक ताला ही क्या कर सकता, तब्दील कर सकता और कोई। इसी वजह से जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जबल अस्वद, हजर अस्वद को जब चूमा था तो आपने इरशाद फरमाया लक़द अलिमतु अन्नका हजर व अन्नी लअलमु ला तदुर्रु वला तनफउ। फरमाया कि मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, तू मुझे ना नुकसान पहुंचा सकता है, तू ना मुझे नफा पहुंचा सकता है। तो जब हजर अस्वद जो जलती पत्थर है वो जब क्या है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक नफा नुकसान देने का वो मालिक नहीं है, बगैर रब ताला की रजामंदी के, बगैर अल्लाह ताला की कुव्वत और ताकत और कुदरत के, तो कोई आम पत्थर चाहे वो अकीक का हो, चाहे वो ज़मुरुद का हो, चाहे नीलम का हो, वो भी क्या पत्थर फायदा नहीं दे सकता। इसी वजह से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके इरशाद फरमाया वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन ला यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक व लव इज्तमाअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन ला यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक
हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बेटे तू याद रख, अगर पूरी की पूरी उम्मत इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुम्हें क्या करे, नफा पहुंचाए, फरमाया कि कोई उम्मत तुझे उतने तक नफा नहीं पहुंचा सकती कि जो अल्लाह ने तेरी तकदीर के अंदर लिख दिया है वही नफा पहुंचाएगी। और फरमाया कि पूरी उम्मत इस बात पर जमा हो जाए कि तुझे क्या करे, नुकसान पहुंचाए, तो कोई भी तुझे नुकसान उतने तक नहीं पहुंचा सकता जो अल्लाह ने तेरी तकदीर के अंदर क्या नुकसान लिखा हुआ है वही तुझे क्या मिलकर रहेगा। इस बात से पता चलता है कि पत्थरों के अंदर हकीकतन कोई तासीर नहीं होती। हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत के तहत अरब ताला जिस पत्थर के जरिए उसको क्या सबब बना दे तो ये क्या हम मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। इसलिए हदीस नबविय्या के अंदर है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहत्तमु बिल अकीक फइन्नहु यनफिल फक्र। हुजूर ने फरमाया कि अकीक पहना करो क्योंकि ये फकर को क्या करता है, दूर करता है। दूसरे नंबर पर इरशाद में इन तखत्तम बिल याकूत अल अस्फर यमनउ ताउन, फरमाया कि याकूत जो जर्द रंग का हो वो पहनने से ताउन की बीमारी से बंदा क्या महफूज रहता है। और ऐसे ही हुजूर ने फरमाया तखत्तम बिल अकीक फइन्नहु मुबारकुन, अकीक अंगूठी पहनो क्योंकि ये क्या बाबरकत होती है, मुबारक होती है, बरकत वाली होती है। तो इन रिवायात की वजह से पता चलता है कि अल्लाह ताला अगर किसी पत्थर के अंदर तासीर पैदा कर दे या अरब ताला उस पत्थर की वजह से किसी के हालात को तब्दील कर दे, उसको सबब बना दे, इसको हम क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन हकीकतन किसी पत्थर के अंदर कोई जरिया कोई नहीं कि वो क्या करे, किसी को नफा दे या किसी को क्या करे, नुकसान दे। दूसरा मसला यहां पर ये याद रखिए कि लोग फिरोजा पहनते हैं। अब फिरोजा पहनने के अंदर कुछ लोगों का यह नजरिया होता है कि फिरोजा पहनने की वजह से दूध फिटता नहीं, ये गलत अकीदा है, ये सरासर गलत बात है, ऐसी बात कोई भी नहीं। ऐसे ही अकीक पहनने की वजह से बाद हजरात का यह नजरिया होता है कि घर के अंदर आग नहीं लगती, ये भी क्या गलत नजरिया। अब फिरोजे के अंदर यह है कि याद रखिए कि फिरोजा ये शियों की तरफ से क्या मंसूब है, शियों ने इसको क्या किया हुआ है, मशहूर किया हुआ है, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल का नाम था अबू लुअलुअ फिरोज। अब उस नाम की तरफ इस पत्थर को उन्होंने मंसूब करके इसकी क्या की है, तरवीज की है, इस वजह से ये फिरोजा मंसूब हुआ उस नाम की तरफ, और इसको क्या तरवीज देते हुए उन्होंने क्या कर दिया, मशहूर कर दिया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये पत्थर पहनना नाजायज है, जायज नहीं, क्योंकि इसके अंदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल के नाम की तरफ क्या निस्बत आती है। दूसरा, इस आयत के अंदर रब तआला ने आगे इरशाद फरमाया अफततमऊना अयुमिनु लकुम वक़द काना फरीक़ुम मिनहुम, फरमाया कि ऐ मोमिनों क्या तुम उम्मीद लगाए हुए हो, क्या तुम तवक्को करते हो कि यहूदी तुम्हें अपना यकीन दिलाएंगे, यानी कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आएंगे। फरमाया कि ऐसा ये उम्मीद ना लगाओ, ये तो ऐसे कोई बदबख्त हैं कि इन्होंने वाज़ेह तौर पर हजरत मूसा के साथ अरब तआला का कलाम भी सुना था, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या कर दी, तब्दीली कर दी। अब कलाम के सुनने की जो सूरत हाल है वो ये याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मूसा ने सुना, हजरत मूसा ने सुनकर इनको क्या किया था, बताया था कि अल्लाह ताला ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है। तो उसके अंदर कुछ अहकाम थे, कुछ ममनुआत थे। अहकाम के अंदर भी उन्होंने क्या कर दी, तब्दीली कर दी, और ममनुआत के अंदर भी इन्होंने क्या कर दी, तब्दीली कर दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अरब ताला का कलाम सुना तो उनको कैसे मालूम हुआ कि यह हक ताला का क्या है कलाम है। तो इस बारे में मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये याद रखिए कि बशर का जो कलाम होता है, इंसानों का जो कलाम होता है, वो कलाम हुरूफ का, अस्वात का, आवाज का क्या होता है, मुहताज होता है। लेकिन अल्लाह ताला का जो कलाम है वो ना हुरूफ का मोहताज है, ना अस्वात का मोहताज है, ना आवाज का मोहताज है। तो उन्होंने मालूम कर लिया कि यहां पर ना हुरूफ है ना अस्वात है, तो ये कलाम खुदाबंदी है। दूसरी वजह यह भी बयान की गई है कि बशर का जो कलाम होता है वो एक जिहत से, यानी कि इधर से कलाम किया जाए या इधर से कलाम किया जाए तब तो क्या बंदा समाअत कर सकता है, उसको सुन सकता है। लेकिन अगर बहुत दूर से हो तो उस कलाम को नहीं समाअत किया जा सकता। तो लेकिन अल्लाह ताला का कलाम क्या है, किसी एक जिहत के मुतय्यन होने के बगैर क्या वहां पर हजरत मूसा ने सुना तो समझ लिया कि ये कलाम क्या है, कलाम खुदाबंदी है। तीसरी वजह यह भी इरशाद फरमाई कि बशर का जो कलाम है वो बंदा कानों के से सुनता है, कानों से सुनता है। अगर कान ना हो तो बशर का कलाम सुनाई नहीं देता। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरब का कलाम पूरे जिस्म से सुन लिया था, जिसके अंदर कानों की जरूरत नहीं पड़ी थी, जिससे मालूम कर लिया था, जिसकी वजह से उनको मालूम हो गया था कि ये कलाम खुदाबंदी, ये कलाम बशर नहीं है। अब यहां पर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ये तो क्या कलाम खुदाबंदी सुनने के बावजूद उसके अंदर क्या करते हैं, तब्दीली करते हैं। अब उनकी तब्दीली क्या थी
کہ تورات کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام کی صفات لکھی ہوئی تھی ان صفات کو وہ کیا کر دیتے تھے, تبدیل کر دیتے تھے, اور وہ پڑھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے. پھر ان کی سب سے بڑی جو بدبختی یہ تھی کہ یہ منافق تھے یہودی, جو صحابہ کے ساتھ ملتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں ہم کیا ایمان لے کر ہیں تمہارے رسول پر, لیکن جب آپس میں جا کر بیٹھتے, جو ان کے سرغنے ہوتے تھے, جو ان کے سردار ہوتے تھے, وہ ان کو کہتے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم تورات سے نکال کر یہ نشانیاں ان کو جا کر بتاتے ہو کہ یہ حضور ایسے ہوں گے, ان کا رنگ ایسا ہوگا, ان کا قد ایسا ہوگا, تو پھر یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارے خلاف اللہ کی عدالت کے اندر تمہارے خلاف تمہاری کتاب سے کیا ہے دلیل پیش کریں گے, اور کسی کے خلاف اسی کے کتاب سے دلیل پیش کر دینا یہ مقدمہ کی جیت کی کیا ہے نشانی ہوتی ہے. تو وہ ان کو کیا کرتے سمجھاتے کہ یہ یاد رکھو یہ اللہ کی عدالت کے اندر اللہ کے سامنے تمہارے کتاب سے یعنی کہ تورات سے نکال کر بتلائیں گے کہ بھائی بتلاؤ یہ کیا محمد جو رسالت لے کر آئے یہ کیا سچی نہیں ہے, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ تم کیا کرو, اس کی پیروی کرنا, اس کی اتباع کرنا, اس کا یہ رنگ ایسا ہوگا, اس کا قد کیا ہوگا ایسا ہوگا. رب تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کیا ہے تورات کے اندر چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مخالف, لیکن ہم سب کو کیا کرتے ہیں جانتے ہیں, وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں ہم ان کو بھی کیا ہے ان چیزوں کو بھی کیا ہے جانتے ہیں. آخرکار انہوں نے پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے, رب تعالیٰ کی طرف سے دعا جانا ہے. حق تعالیٰ سے دعا کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے.